جادو، راز اور خواب۔ آج ایک ایسا سفر شروع ہونے جا رہا ہے جو دل کو چھو جائے گا۔ خوش آمدید خوابوں کا جہاں میں، جہاں ہر لمحہ ہے ایک نئی کہانی۔ سنہری گاؤں کی حقیقت۔ سبز پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسا گاؤں چھپا ہوا تھا جسے دنیا کے نقشے پر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس گاؤں کا نام تھا سنہری بیل، مگر لوگ اسے پیار سے کدو نگر کہتے تھے۔ مگر یہ عام گاؤں نہ تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑے جادوئی قدو کے اندر آباد تھا۔ جی ہاں، ایک قدو، اتنا بڑا کہ اس کے اندر درخت، ندی، چراغ، بازار اور یہاں تک کہ ایک شاندار محل بھی موجود تھا۔ محل کے بیچوں بیچ ایک عجیب سی گھڑی لگی ہوئی تھی جو نہ وقت بتاتی تھی نہ بجتی تھی، لیکن صدیوں سے وہی نصب تھی۔ یہ گاؤں اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا تھا اور لوگ باہر کی دنیا سے ناآشنا تھے۔ فراز اور اینا کا تجسس۔ محل کے ایک کونے میں دو بچے، فراز اور اینا، بیٹھے ستاروں کی تصویریں بنا رہے تھے۔ فراز نے اچانک سوال کیا، اینا، کیا واقعی باہر کوئی دنیا ہے؟ یہ سب صرف پرانی کہانیوں کی باتیں ہیں، اینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ کدو نگر ہی سب کچھ ہے، باہر صرف خطرے ہیں۔ فراز سنجیدہ ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جانو، باہر ہے کیا؟ بزرگ نوری کی کہانی۔ فراز اور اینا پہنچے گاؤں کے سب سے پرانے بزرگ نوری چچا کے پاس۔ چچا، کیا آپ نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی ہے؟ نوری چچا نے گہری سانس لی۔ بچوں، ایک وقت تھا جب یہاں لوگ باہر سے آئے تھے، پر اب کوئی واپس نہیں گیا۔ کہتے ہیں جادوئی دیوار نے ہمیں قید کر لیا۔ لیکن کیوں؟ فراز نے پوچھا۔ شاید ہماری حفاظت کے لیے، یا شاید ہمیں روکنے کے لیے۔ ممنوع دروازے کی خبر۔ نوری چچا نے آہستہ آواز میں کہا، ایک زمانے میں یہاں ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جو جادوئی قدوں کے اندر چھپا ہوا تھا، مگر کسی نے اسے کبھی کھولنے کی جرت نہیں کی۔ اینا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اگر ہم وہ دروازہ ڈھونڈ لیں، فراز نے کہا، تو شاید ہم جان سکیں کہ باہر کیا ہے۔ خوابوں کی لائبریری۔ محل کے نیچے ایک پرانی لائبریری تھی جسے لوگ خوابوں کی لائبریری کہتے تھے۔ فراز اور اینا نے وہاں داخل ہو کر پرانی کتابوں کی تلاش شروع کی۔ ایک پرانی سنہری جلد والی کتاب ملی، قدو نگر کی 7 سیڑھیاں، کتاب کا راز۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر باہر جانا چاہتے ہو تو پہلے اندر جھانکنا ہوگا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ فراز نے کہا، شاید یہ روحانی امتحان ہے۔ دینا بولی، پہلے خود کو ثابت کرنا ہوگا، تب ہی دروازہ کھلے گا۔ پہلی سیڑھی، نیت کی پاکیزگی۔ کتاب کے مطابق پہلی سیڑھی ہے نیت کی پاکیزگی۔ فراز اور اینا نے اپنی نیت کی سچائی جانچنے کے لیے گاؤں کی مدد کرنا شروع کی۔ بیماروں کی خدمت کی، ناداروں کو کھانا دیا اور بزرگوں سے دعائیں لے۔ محل کی گھڑی نے پہلی بار ہلکی سی جنبش کی۔ دوسری سیڑھی ہمت۔ دوسری سیڑھی تھی ہمت۔ گاؤں کے قریب ایک خوفناک جھاڑی تھی جس میں جانے سے سب ڈرتے تھے۔ اینا اور فراز نے مل کر وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جھاڑی کے اندر انہیں ایک روشن لکیر ملی اور لکیر کے آخر میں ایک چھوٹا سا دروازہ، دروازے کا چمکتا نشان۔ دروازے پر کچھ لکھا تھا، سچ کا سورج تمہاری راہ دکھائے گا اگر تمہارے دل میں خوف نہ ہو۔ اینا نے کہا، ہم نے پہلی 2 سیڑھیاں مکمل کی ہیں، شاید یہ تیسری کا امتحان ہے۔ ایمان۔ فراز نے دروازے کو چھوا اور اچانک دروازہ چمکنے لگا۔ خوابوں کا جہان۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک نئی راہداری تھی جسے روشن ستاروں سے سجایا گیا تھا۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، خوابوں کا جہاں میں خوش آمدید۔ فراز نے مسکرا کر کہا، اینا، شاید ہم اپنی دنیا سے باہر نہیں جا رہے، بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آ رہی ہے تو خوابوں کا جہاں چینل کو ابھی سبسکرائب کرے تاکہ آپ کبھی کوئی نیا جادوئی قصہ مس نہ کرے۔ تیسری سیڑھی، قربانی کا جذبہ۔ خوابوں کی راہداری میں داخل ہونے کے بعد اینا اور فراز کے سامنے ایک آئینہ نمودار ہوا جو ان کی تمام خواہشیں دکھا رہا تھا۔ سونے کے محلات، پرندوں کے پر، اڑن قالین، ہر وہ چیز جو وہ چاہتے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، قربانی دو ورنہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اینا نے فوراً اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی نانی کی دی ہوئی چاندی کی چوڑی، آئینے کے سامنے رکھ دی۔ فراز نے اپنی کتابیں جو اس نے برسوں جمع کی تھیں آئینے کے آگے رکھ دیں۔ آئینہ غائب ہو گیا۔
और तीसरा दरवाज़ा खुल गया। जादूगर उल्लू की रहनुमाई आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बुजुर्ग उल्लू मिला जिसकी आंखें सुनहरी थीं। मैं हूं बाबा हाकमदार, इसरा के निगरान। तुम दोनों ने अब तक 3 सीढ़ियां मुकम्मल की हैं, मगर आगे का सफ़र खतरनाक है। उल्लू ने उन्हें एक छोटा सा जादुई पंख दिया। ये तुम्हें अंधेरे में रोशनी देगा, मगर सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए। अंधेरे का गार अगला मरहला था, एक तारीक गार जिसमें कुछ दिखाई न देता था। फराज ने पंख को खोला तो गार चमक उठा। अंदर एक बूढ़ा शख्स कैद था। मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हें राज दूंगा। ईना ने शक किया, ये आजमाइश हो सकती है, मगर फराज ने फैसला किया और ताल्लु खोल दिया। बूढ़ा दरअसल एक जादूगर था जिसने दुआ दी और गार के आखिर में अगला दरवाज़ा खोल दिया। चौथी सीढ़ी सच्चाई का सामना। दरवाजे के अंदर एक कमरा था जहां दोनों की माजी की गलतियां बड़ी स्क्रीन पर जाहिर हो रही थीं। फराज ने स्कूल में झूठ बोला था। ईना ने एक बार किसी की चीज चोरी की थी। आवाज आई, सच को कबूल करो वरना आगे नहीं जा सकोगे। दोनों ने शर्मिंदगी से अपनी गलतियों का एतराफ किया और दिल से मुआफ़ी मांगी। चौथा दरवाज़ा खुल गया। नगमों का चबूतरा, एक खिली जगह जहां रंग बरंगे परिंदे गा रहे थे और हुआ में सर बिखरे हुए थे। आवाज आई, उसारों में सच और लफ्जों में रोशनी है। अगर तुम इत्तेहाद से गाओ तो दरवाज़ा खुलेगा। फराज और ईना ने मिलकर एक पुराना नज़्म गाया जो उनके गांव की शान थी। दरवाज़ा गूंज उठा और 5वीं सीढ़ी का रास्ता खुल गया। ख्वाबों के आईने, एक बड़ा कमरा जहां सैकड़ों आईने नस्ब थे। हर आईना एक अलग मुस्तकबिल दिखा रहा था। फराज ने देखा कि वो बाहर की दुनिया का बड़ा मुहक्किक बन चुका है। ईना ने खुद को एक परिंदों की बोली समझने वाली साइंसदान के रूप में देखा, मगर एक आईने में दिखा कि अगर वो ये सब छोड़ दे तो गांव हमेशा कैद में रहेगा। उन्होंने फैसला किया, हमें वापस जाना है, सबको आजाद करवाना है। आईना चमका और अगला रास्ता खुल गया। 5वीं सीढ़ी इत्तेहाद। दरवाजे के बाहर गांव के तमाम बच्चे इकट्ठे खड़े थे। तुम कहां जा रहे हो? हमें छोड़ के, फराज ने कहा। नहीं, हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। ये सिर्फ हमारा सफर नहीं, सबका है। बच्चों ने हाथों में हाथ दिए और महल के अंदर एक नई रोशनी जाग उठी। जादुई नदी का इम्तिहान। अगला मरहला एक चमकती नदी थी जिसे उबूर करना था। नदी में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही कोई कदम रखता पानी चक्कर खाकर गिरा देता। ईना ने उल्लू का पंख जेब से निकाला और इसे नदी पर फेंका। पानी एक पिल की सूरत में जिम गया। सब बच्चों ने हाथों में हाथ डाले और नदी पार कर गए। घंटी का इंकिशाफ। नदी के पार एक बड़ी घंटी लटक रही थी, वही घंटी जो गांव में सबसे पुरानी कही जाती थी। ये घंटी अगर 3 बार बजी तो कद्दो नगर की कैद खत्म हो जाएगी। ये आवाज उल्लू की थी, मगर घंटी बहुत ऊंची थी। फराज ने कहा, हम सब मिलकर इंसानी मीनार बनाएंगे। इंसानी मीनार। बच्चे एक करके एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने लगे। नीचे बड़ों ने सहारा दिया। पूरी बरादरी मुत्तहिद हो गई। फराज सबसे ऊपर गया। हुआ तेज हो रही थी, मगर वो नहीं रुका। इसने पूरी ताकत से घंटी को बजाया। टन टन टन। जमीन लरजने लगी, दीवारें हिलने लगीं। ये थी कहानी का निस्फ, लेकिन अभी असल राज तो बाकी है। अगर आपको ये दिलचस्प लग रही है तो ख्वाबों का जहां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली, ताकि बाकी हिस्से भी अब तक पहुंची। पहले से भी ज्यादा जादुई और दिल को छू जाने वाले महल का बिखरना। जैसे ही फराज ने तीसरी बार घंटी बजाई, पूरे कद्दो नगर में जलजला सा आ गया। लोग घबरा कर महल से बाहर निकलने लगे। दर ओ दीवार लरजने लगे। जमीन ने एक चीख की और दीवारों में दरारें पड़ने लगें। कुछ ही लम्हों में वो जादुई महल, जिसने सबको बरसों कैद में रखा, रेत की तरह बिखरने लगा। ईना ने फराज का हाथ पकड़ा। हमने कर दिखाया। वाकई, मगर वो जानते थे अभी सिर्फ एक दरवाजा खुला है, पूरी दुनिया तक पहुंचना बाकी है। पहला कदम बाहर की दुनिया में। महल के मलबे के बीचों बीच एक रास्ता निकल आया जो दूर पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। सुनहरी रोशनी की लकीर इस रास्ते पर पड़ रही थी। फराज ने कहा, यही है वो बाहर की दुनिया का रास्ता जो हम बचपन से सुन रहे थे। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन फिर ईना ने सबको तसल्ली दी। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अब सबके लिए रास्ता खोलने निकले थे। अब साथ चली और यूं पूरा गांव चल पड़ा आजादी की तरफ। जंगल की पहली आजमाइश। रास्ते में एक घना जंगल आया
जहां हर दरख्त बोलता था वापस चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। लोग रुकने लगे, लेकिन फराज और ईना ने उल्लू का पंख आसमान की तरफ फेंका। पंख ने रोशनी फैलाई और दरख्तों की आवाजें बंद हो गईं। ये जादू अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम सच के साथी हो। एक नरमी भरी आवाज आई और रास्ता साफ हो गया। चांदनी की झील। जंगल के बाद एक चमकती झील आई, जिसका पानी चांदनी की तरह चमक रहा था, मगर इस पर पिल ना था। हम उसे कैसे पार करें? किसी ने पूछा। ईना ने झील की सतह पर कदम रखा। पानी सख्त हो गया जैसे बर्फ। ये झील सिर्फ उनके लिए खुलती है जिनका दिल रोशन हो। सब ने एक करके झील पार की। झील के पार एक नया नक्शा पड़ा था। सच्चाई का खंजर। नक्शे पर लिखा था, सच्चाई का खंजर जिसने झूठ के बंधन काटे, तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जाएगा। जंगल के किनारे एक चट्टान पर वो खंजर पड़ा था। फराज ने जैसे ही इसे छुआ, इसके हाथ में रोशनी भर गई। खंजर एक जादुई ताला काटने के लिए था, जो हजारों साल से बंद पड़ा था। ताला खुला और अगला दरवाजा नमूदार हुआ। छठी सीढ़ी। कुर्बानी। दरवाजे के पीछे एक ऐसी वादी थी जहां हर कोई अपने सबसे कीमती ख्वाब से अलग हो जाता। ये तुम्हारा ख्वाब है, छोड़ना होगा। ईना ने ख्वाब में देखा वो परिंदों की जबान समझ सकती है। फराज ने खुद को दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान देखा, लेकिन उन्होंने आंखें बंद की और कहा, हम सबसे पहले अपने लोगों को बचाएंगे। ख्वाब बाद में। दरवाज़ा खुल गया। बादशाह जामर्द का गुजरगा। आगे चलते हुए उन्हें एक अजीब व गरीब कला नजर आया। एक दरवाजे पर लिखा था, यहाँ वही दाखिल हो सकता है जो दिल का बादशाह हो। अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे, जिन्होंने कहा, तुम दोनों मेरा इम्तिहान पास कर चुके हो। मैं हूं बादशाह जामर्द, जिसे दुनिया भूल चुकी है। उन्होंने फराज और ईना को एक सब्ज ताज पेश किया। ये ताज तुम्हारे सर का नहीं, नियत का है। इसे संभालो, सच के वक्त काम आएगा। वक्त का दरिया। जामर्द बादशाह ने बताया, आखिरी दरवाजे से पहले तुम्हें गुजरना होगा वक्त के दरिया से, जहां माजी और हाल का फर्क मिट जाता है। वक्त के दरिया में कदम रखते ही सबको अपने माजी की झलकियां दिखाई देने लगें। धोखा, गलती, मोहब्बत, नुकसान, सब कुछ। फराज ने आंखें बंद की। हम माजी को मानते हैं, लेकिन कैद नहीं होना चाहते। पानी पीछे हट गया। रास्ता खुल गया। आखिरी आजमाइश। इत्तेहाद की घंटी। एक और घंटी, मगर इस बार सिर्फ फराज को नहीं, पूरे गांव को मिलकर बजानी थी। ईना ने कहा, अब हम कैद से आजाद हैं, मगर अगर हम खुद को अलग समझेंगे तो फिर से कैद हो जाएंगे। सबने हाथों में हाथ दिए और घंटी को मिलकर बजाया। टन टन टन। जमीन हिली, आसमान चमका और एक नया सूरज तुलू हुआ। रोशनी की वादी। घंटी की आवाज के साथ सामने एक चमकती वादी नजर आई। बादलों की ओट से सूरज की असल रोशनी पड़ी। ये पहली बार था जब कद्दू नगर के लोगों ने सूरज देखा था। फराज ने आसमान की तरफ देखा। यही है सच की रोशनी, ख्वाबों की ताबीर और हमारी असल दुनिया। ईना ने कहा है, हम वापस जाएंगे और बाकी गांव वालों को भी रोशनी दिखाएंगे। अगर आपको ये सुनहरी कहानी पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ख्वाबों का जहां, क्योंकि यही है वो जगह जहां हर ख्वाब एक नई दुनिया की कुंजी बनता है। नए कैदी, पुराने ख्वाब। जैसे ही लोग रोशनी की वादी में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कुछ लोग कैद हैं। वो लोग जो बरसों पहले गायब हो गए थे। ये तो वही लोग हैं जो पुराने जमाने में कहानियों से गायब हो गए थे। एक बुजुर्ग पुकार उठे। इन कैदियों के हाथों में ख्वाबों की जंजीरें थीं, वो जंजीरें जिन्हें खुद उन्होंने कभी चुना था। फराज ने करीब जाकर पूछा, अब लोग बाहर क्यों नहीं आते? उन्होंने जवाब दिया, हम रोशनी से डर गए, क्योंकि हमें अपनी झूठी दुनिया प्यारी हो गई थी। सच्चाई का चिराग। ईना ने आहिस्ता से अपना तिलिस्मी खंजर निकाला और उनकी जंजीरों पर मारा, मगर जंजीरें न टूटी। एक नूरानी आवाज आई, ये जंजीरें खंजर से नहीं, तुम्हारे अंदर की रोशनी से टूटेंगी। फराज और ईना ने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की, आओ अल्लाह, हमें वो ताकत दे जो ख्वाबों को आज़ाद कर सके। चिराग रोशन हुआ और एक एक करके जंजीरें खुद बखुद टूटने लगें। बादशाह कद्दू नगर की वापसी। एक धुंध में लिपटा चेहरा वादी के किनारे पर नमूदार हुआ। मैं हूँ असली बादशाह, जिसे जादूगरनी ने कैद करके महल पर कब्जा किया था। इसके सर पर ताज नहीं, आंखों में आंसू थे। मैंने खुद गुरूर किया था,
लोगों को नजरअंदाज किया। इसीलिए मेरे महल ने मुझे ही कैद कर दिया। ईना ने कहा, फिर वक्त आ गया है कि आप अपनी रियाया को वापस लेकर चलीं, मगर इस बार आजिज़ी के साथ। अंधेरा जो रोशनी में छुपा था, जैसे ही कैदी आज़ाद होने लगे, वादी में धुंध गहरी होने लगी। फराज ने सोचा, ये धुंध तो रोशनी की वादी में नहीं होनी चाहिए थी। फिर एक साया नमूदार हुआ, जादूगरनी ज़ारम्मा, तुमने मेरी जेल तोड़ी, मेरी सल्तनत बर्बाद की, अब इसकी कीमत दोगे। ज़ारम्मा ने वादी को कैद करने की कोशिश की, मगर बादशाह ने कदम बढ़ाया, नहीं ज़ारम्मा, अब मैं अपनी रियाया के लिए खड़ा हूं। दिलों का जादू। ज़ारम्मा ने एक तीर चलाया जो दिल को सुस्त करता था, मगर तीर किसी को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पूरा गांव अब एक साथ खड़ा था, दिल से दिल जाड़ी हुए। तुम्हारे जादू का मुकाबला तलवारों से नहीं, दिलों के इत्तेहाद से होगा, फराज ने पुकारा। ज़ारम्मा पीछे हटी। ये कैसा जादू है जो मेरे तमाम मंतर तोड़ रहा है? माजी का आईना। ज़ारम्मा को रोकने के लिए बादशाह ने पुराना आईना निकाला, वो आईना जिसमें इंसान खुद को देखता है जैसा वो अंदर से है। उन्होंने ज़ारम्मा को आईना दिखाया। इसने खुद को एक बच्ची के रूप में देखा जो कभी मोहब्बत चाहती थी मगर धुतकारी गई। ज़ारम्मा रोने लगी, मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे सच्चे दिल से अपनाए। ईना आगे बढ़ी, ज़ारम्मा, अगर तुम सच बोल रही हो तो अब वापस आ जाओ। रोशनी में मुआफ़ी की रोशनी। ज़ारम्मा ने अपना असा ज़मीन पर फेंक दिया, मैं हार गई, मगर आज दिल से जीती हूँ। रोशनी ने इसके गिर्द हल्का बना लिया और उसका चेहरा नर्म हो गया। अब मैं कैद नहीं, आज़ाद हूँ। महल की बाक़ियात आसमान में बुलंद होकर रोशनी बन गईं। फराज ने कहा, मुआफ़ी सबसे बड़ा जादू है, वापस कद्दू नगर। अब वो सब वापस लौटने लगे, इस बार रोशनी और सच्चाई के साथ। गांव की गलियां खुशी से झूम उठीं। फराज और ईना वापस आ गए, सच के साथ। बादशाह ने ऐलान किया, आज से हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत इस बादशाही का हिस्सा है। महल अब सबका है, कैद का नहीं। ख्वाबों का महल है, ख्वाबों का पहरा। ईना ने ख्वाबों की हिफाजत के लिए एक तजवीज़ दी, हमें चाहिए कि महल में ऐसा कमरा बनाएं जहां सिर्फ सच्चे ख्वाब महफूज हों। फराज ने हंसते हुए कहा, और वहां सबको इजाज़त हो, मगर सिर्फ एक शर्त पर, वो दिल सच्चा हो। महल में कमरा सच्चाई बनाया गया जहां बच्चे आकर अपने ख्वाबों को पंख लगाकर उड़ाते थे। नई शुरुआत। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई शुरुआत है। फराज और ईना ने ख्वाबों की लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स अपनी कहानी लिखता, अपने सफ़र, अपनी सच्चाई और अपने ख्वाब। और एक बोर्ड पर लिखा था, ख्वाब वही होते हैं जो दिल से जीते जाएं। कहानी का इख्तिताम करीब है, लेकिन आपके ख्वाबों का जहां कभी ख़त्म नहीं होता। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बनाइए अपने दिल को जादुई दुनिया का हिस्सा। बादशाह का नया अहद। महल की फसीलों पर रोशनियों के हार लटक रहे थे। पूरे कद्दू नगर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बादशाह ने महल के सब लोगों को जमा किया और कहा, आज मैं एक नया अहद करता हूं। ये महल अब सिर्फ बादशाहों का नहीं, अवाम का है। लोगों ने तालियां बजाईं और बच्चों ने जोर से नारा लगाया, कद्दू नगर जिंदाबाद। ईना ने फरमाया, हकीकी बादशाह वो होता है जो दिलों पर राज करे, ताज पर नहीं। राज का पता। फराज महल के पुराने हिस्से में जाकर एक बंद दरवाज़ा खोलता है जहां सदियों पुरानी किताबें मौजूद थीं। एक किताब पर लिखा था, महल का आखिरी राज। इसने किताब खोली तो इसमें दर्ज था, महल को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करने के लिए ख्वाबों की आग का चिराग जलाना होगा, मगर उसे सिर्फ वही जला सकता है जिसने अपनी अना को जला दिया हो। फराज के कदम रुक गए। क्या मैं अपनी अना छोड़ सकता हूँ? अना की कुर्बानी। और फराज ने अपनी कामयाबियों, फतूहात और बहादुरी के तमगे एक कमरे में रख दिए। मेरी असल ताकत मेरे ख्वाब नहीं, मेरी आजिज़ी है। उसने एक छोटी सी शमा जलाकर चिराग के नीचे रखी और फिर वो शोला भड़क उठा। चिराग पूरी महल को रोशन करने लगा और आसमान पर एक जुमला उभरा, सच वही है जो खुद को कम समझे, दूसरों को बड़ा जाने। सहर का इख्तिताम। और ज़ारम्मा ने महल के ऊपर आसमान में आकर आखिरी बार सबको देखा, मेरी जादुई ताकत खत्म हो चुकी है, मगर आज मैं आज़ाद हूँ। उसने अपनी जादुई छड़ी बच्चों को दे दी, इसे सिर्फ खुशी फैलाने के लिए इस्तेमाल करना। लोगों ने ज़ारम्मा को गिले लगाया,
اور اس نے پہلی بار حقیقی خوشی محسوس کی۔ کدو نگر کا میلہ محل کے سامنے جشن کا اہتمام ہوا۔ ہر شخص نے اپنی خواہش ایک کدو کے اندر رکھ کر پانی میں چھوڑ دی۔ اینا نے کہا، یہ سب کدو کسی ایک خواب کو پورا کریں گے، لیکن شرط صرف سچائی ہے۔ میلے میں بچوں نے خوابوں کی پرواز کا کھیل کھیلا، جہاں وہ اپنے خوابوں کو آسمان کی طرف چھوڑتے۔ خوابوں کا درخت۔ فراز اور اینا نے مل کر ایک بیج بویا۔ یہ خوابوں کا درخت بنے گا اور صرف تبھی بڑھے گا جب لوگ سچے خواب دیکھیں گے۔ کچھ دن بعد درخت اگ آیا اور اس کی شاخوں سے خوابوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہر گھنٹی کسی نہ کسی شخص کا سچا خواب سناتی۔ بچی کا خواب۔ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور بولی، میرا خواب ہے کہ میری ماں واپس آ جائے، جو برسوں پہلے کھو گئی تھی۔ محل کی گھنٹی زور سے بجی اور دروازہ کھلا۔ ایک عورت اندر داخل ہوئی، میری بچی، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ محل نے ایک اور خواب سچا کر دکھایا، نئی نسل، نئے خواب۔ فراز اور اینا نے اعلان کیا، یہ محل اب نسلوں کی ملکیت ہے، جہاں ہر بچہ اپنے خواب سجائے گا۔ بچوں کو سکھایا گیا، سچے خواب وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی جگائیں۔ محل میں خواب ساز اسکول قائم ہوا، جہاں بچوں کو محبت، سچائی اور قربانی سکھائی جاتی تھی۔ ازارمہ نے اینا اور فراز سے کہا، اب وقت ہے کہ میں اپنی باقی زندگی غریب بچوں کو سکھانے میں گزاروں۔ اس نے ایک نیا سفر شروع کیا، سچائی کے راستے پر۔ محل کی ایک دیوار پر اس کی تصویر لگا دی گئی، جس کے نیچے لکھا تھا، جو خود کو بدل لے وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جادوئی قدوں کا محل۔ اختتام۔ آج محل میں جشن تھا، ایک نئے عہد کا آغاز۔ اینا نے کہا، ہم نے خود کو پایا، سچائی کو گلے لگایا، اور اب ہم سب آزاد ہیں۔ فراز نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ صرف ایک محل نہیں، یہ خوابوں کا دیس ہے جہاں دل سچ بولتے ہیں۔ اگر تمہارا خواب صرف تمہارے لیے ہے تو وہ صرف خواہش ہے، مگر اگر تمہارا خواب دوسروں کو جگاتا تو وہ جادو ہے۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہم آپ کو لے چلی مزید جادوئی کہانیوں کی طرف، جہاں خواب زندہ ہوتے ہیں۔